ओके। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 6 टास्क मैंने दिए थे। व्हाट इज द टास्क? सो इफ यू सी, एनीवे, आई हैव ऑलरेडी completed the coding for you anyway. These were the assignment, right? 6 असाइनमेंट दिए थे लास्ट क्लासेस में हम लोग ने। सिर्फ लूप असाइनमेंट के ऊपर, एक असाइनमेंट के ऊपर पूरा टाइम लिया था। आज Sir, हम you लोग, haven't shared your screen. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, हियर इट इज, यस। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके। सो अगर सबको याद होगा, हम लोगों ने लास्ट टेस्ट में, लास्ट क्लास में ये लूप असाइनमेंट कंप्लीट किया था, जिसके बेसिस में तुम लोगों को मैंने एक एडिशनल टास्क दिया था। ओके, दैट ये सब चीज एक बार करके आना कि इसमें से कितना असाइनमेंट सबको इजी लगे और कितना डिफिकल्ट लगे। हेलो? हेलो? Yes, sir. Sir, two assignments are difficult and four are easy. ओके, which two are difficult? We'll be discussing both, only those two. Okay, which Sir, are the difficult one? palindrome and that slicing without the slicing and reverse function. Okay, so this one is the difficult one, and this one is the difficult one. Palindrome. Yes, sir. I also faced difficulties in these two. Okay, so I'll be discussing only those two because this I have already covered, right? If you remember in Yes, the sir. last class, this is just a additional context that people who have not done it, so they will be able to do. But luckily, unluckily, few people gave me the answers. Few people were not interested at all. That's fine. That's fine. We'll do our things. Okay, no worries. So if you go for loop 6 answers, I'll just show you first. If you do not understand, then tell me, okay, where you are not understanding. So this is a task one, the first one. Anyway, I'll just go through one by one. I hope you people understand, okay? So if you see, these are the string which you got, and then we have to calculate the even, odd, letter, and special, okay? So as we have already discussed in the last class, we have to go by character basis, the whole string, and if it is digit, so then it will be either 0 to 9, right? So in those cases, we are checking integer of ch mod to equal to 0. What is this mod to do? So it will It just give you reminder, the reminder zero. remainder. Exactly. Remainder will be 0. So if remainder equal to 0, it will be even. So what will be those? 0, 2, 4, 6, 8. Got it? And other than that, whatever will be there, that will be odd. 1, 3, 5, 7, 9. I have already done this even odd program in the past as well. So hope you Yes, understood, sir. right? Yes, sir. So so let's go for the next one. So over here, if you see, after this, we have the alpha character. What is the alpha? Sorry, anyone is saying anything? यस सर मतलब आप इंग्लिश में पढ़ा रहे थे वही मतलब मैंने ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इविनर्ड सबको समझ में आया ना? इविनर्ड यस सर जितना यस Yes, सर sir. ठीक है। सो अल्फा न्यूमेरिक में क्या था? अल्फा न्यूमेरिक में मैंने बोला था कि लेटर जितने हैं सारे आ जाएंगे, लेटर जो भी है उसके लिए अल्फा न्यूमेरिक करके हम लोग निकाल देंगे। और मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर को ईच स्पेस करके नहीं लिख दिया क्योंकि मेरे को स्पेसेस नहीं चाहिए थे। मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुमको ये वाला चीज नहीं हटा दोगे, यू कैन आइदर यूज एल्स एज वेल, ओके? इफ यू डू एल्स ऑल्सो यू विल गेट ओनली द स्पेशल, okay? Okay, but sir. but what I didn't include each space character for this, so that's why you can see this like this, okay? So let me just exit over here, so I'll show you how it is happening. So if you see, these are all the even numbers, these are all the odd numbers, ये सारे odd number हो गए। लेटर्स यहाँ पे आ गए, कैपिटल और स्मॉल, एंड यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आ गए। ठीक है। यहाँ पे मैंने अल्फा क्यों खाली डाला, ईज अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिजिट वाले जो यहाँ पे कैलकुलेट हो गए, यहाँ पे नहीं आएंगे, राइट? समझ में आ रहा है? तो मेरे Yes, को sir. अपर अपर लोअर की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ईफ में सी एच डी चला जाता है तो इवन और यहाँ पे कैलकुलेट हो गया,
तो अगर मैं ईज अल्फा करता हूं, अगर इनकेस सोचो कि ये वाला क्लॉज नहीं होता और हाँ मैं यहां पे ओनली इफ डालता, व्हाट क्या होता यहाँ पे? ये देखो सारे आ वापस इसको जाते, अल्फा चेक कर, साफ चेक करता हूँ। स्पेशल में सारे आ गए, देखो दिख रहा है। यस सर। तो बट मैंने क्या किया, मैंने ओनली अल्फाबेट का लगा था, स्पेशल को सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पे आने की तरीका नहीं है और कुछ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ईच डिजिट जब कर दिया तो इसके अंदर सारे इवन और चले गए। और ये एक तरीका है लिखने का, ओके, कैसे तुम लिखना चाहते हो, देयर आर डिफरेंट वे, ओके, हाउ यू वांट टू राइट द थिंग्स, ओके। एल इफ या कैसे ये तुम लिखना चाहते हो, तो सोचो कि मेरे को खाली अगर एक चीज याद रखना, जो भी चीज जब भी आप ई फेल्स के अंदर, ई क्लच के अंदर जाओगे, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बिकॉज एल्स इफ है ये। सिमिलरली एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ओ वाला जो कैरेक्टर है यहाँ पे जब स्ट्रिंग में जाएगा, तो ये वाले में कभी जाएगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हैंडल करना उसके हिसाब से हम वैरी कर सकते हो। आप अगर चाहते हो तो पूरा का पूरा चेक लिखो, नहीं तो अगर पूरा का पूरा चेक लिखते हो एनीवे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो आप उसके हिसाब से हैंडल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने सी एच स्पेस करके खाली हैंडल कर दिया, जबकि मेरे पास इवन ऑड सब कुछ है, एलिफ है। तो समझ में आया सबको? यस सर। सर। चलो अभी जाते हैं नेक्स्ट में। तो टास्क टू क्या था? टास्क टू था, सॉरी, टास्क टू था सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। सबको पता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? इफ एन, एन इंटू, N into n+1/2. या, सो एन इंटू एन प्लस, ओके दिस इज प्लस, हाँ, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। सो अगर यहाँ पे मैंने 10 दिया, तो क्या होगा? 10 × 11 डिवाइड बाई टू, 2 5 × 10, 5 × 11 = 55, right? This should be the answer. So this is the same thing I have done over here. What I am doing, but yeah, यहाँ पे मैंने ये एक तरीका है एक्चुअली, कुछ लोगों ने इसको यूज किया है, बट मैंने रेंज फंक्शन यूज किया है। आई थिंक ये नहीं था ना, ये बाद में ऐसा, ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, या दिस इज द वन, दिस इज द वन, या। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस आइदर यू कैन गो बाय दिस वे, इफ आई गो बाय दिस वे देन व्हाट विल बी द प्रोग्राम फॉर दिस। यहाँ पे मैं डायल कर दूंगा टोटल सम इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन टू, प्रिंट टोटल। ओके, यहाँ पे एग्जिट मार देता हूँ। ये एक कर सकता हूँ, ये एक तरीका है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस दूसरा सर। तरीका मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर देखोगे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज कर दिया और एन प्लस वन तक मूव किया, और एक को एक के बाद प्लस किया। दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग इट, ओके, यस सर। जो कि लेमैन के लिए। अगर तुमको मैथमेटिकल फंडा पता है, यू कैन राइट लाइक दिस, और एल्स यू कैन राइट बाई दिस। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? किसी यस को कोई सर। डाउट है? Yes, sir, नो सर। understood. ओके, सो इसको रन करके देख लेते हैं। यस, सो यहाँ पे 55 आ गया और यहाँ पे 55 आ गया। तुमको ऐसे जैसे तरीके से हैंडल करने कर सकते हो, ओके। चलो ये हो गया। क्यों यहाँ पे आया, अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 55.0 आया, क्यों आया? एनीवन? I have यहाँ पे used यहाँ division पे division 50, operator, not floor division operator. yes, 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 exactly. So this is a division operator. I have used the division operator only, but why I have not used the floor operator? ऑपरेटर में आएंगे, आज आज ही ऑपरेटर थोड़ा कवर करूंगा, बिकॉज इसीलिए मैंने ये सब तुमको दिया हुआ था, थोड़ा तुमको समझ में आ जाए। बट ऑपरेटर में बेसिक्स कवर करेंगे आज, अरिथमेटिक वन ओनली, ओके। एंड मैं उसके बाद कल थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा। तो अगर तुमको पता होगा व्हाट इज हैपनिंग डिवीजन ऑपरेटर में, हमेशा अगर मैं सोचो 5/2 कर देता हूं, दैट बिकम्स 2.5 विच इज ए फ्लोट, राइट? सो जब भी तुम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हो, single slash, what happens, it converts it a float type, okay। so generally जब भी कोई
एक सोचो कि एक इंटीजर है जिसका नाम है लेट्स से 50, एंड लेट्स से अनदर इज 2, we are dividing 50 by 2. So whenever we are doing the division backend, what is happening, it will be converting it to float typecasting 50 divided by float typecasting 2. So what will happen, 50.0 divided by 2.0, which will be 25.0, something like this happens. Okay, सो दैट क्या होता है, यहाँ का जो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, सोचो टुमारो इट बिकम्स 10/3, इट विल बी बिकम 3.333, समथिंग लाइक दिस. ओके, व्हाई, बिकॉज अगर मैं प्लॉट नहीं करता हूं तो डिवीजन ऑपरेटर में ये होगा. अगर तुमको याद होगा, मैंने पाइथन 2 और पाइथन 3 के डिफरेंस कवर किया था. किसी को याद है? Division operator was not supporting the floor values. Like previously, what was happening? जब भी तुम 10/3 भी करोगे, ये 3 आता था in Python 2.2, Python 2. But when it becomes Python 3, इन्होंने 10/3 को 3.33 कर दिया नॉर्मल, और एक दूसरा डिवीजन ऑपरेटर लेके आए मॉड, जिसका नाम है फ्लोर डिवीजन. इसका आउटपुट आएगा 3. सबको पता है ये चीज? किसको नहीं पता बताओ, वो चीज कवर कर लेंगे आज. एनीवे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो ये दो तरीके से तुम कर सकते हो. बट मेरे केसेस में एनीवे ये चीज फ्लोट में जाने वाला नहीं था, तो मैं अगर चाहूं तो इसको इंटीजर करके भी डाल सकता हूं ऐसे करके, और इट विल बी ऑल्सो डन. ओके, दिस विल बी ऑल्सो डन इफ यू वांट टू कवर इट. सॉरी, इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर, और एल्स आई कैन गिव यू ए होल इंटीजर लाइक दिस. ओके, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे तुमको करना चाहे तुम कर सकते हो. ओके, अगर मैं इंटीजर नहीं करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ दूंगा, इसको भी इंटीजर यहाँ पे टोटल सम को कर सकता हूँ, और यहाँ पे इंटीजर कन्वर्ट करके कर सकता हूँ. ठीक है, दो तीन तरीके हैं. समझ में आ रहा है क्लियरली सबको? यस सर. जो जहां पे डाउट होगा पूछना. अभी आते हैं तीसरे में. व्हाट आर द थर्ड टास्क? टास्क रिवर्स. रिवर्स, ओके, ये तुम लोगों को डाउट है, राइट? यस सर. ओके, सो यहां पे आते हैं, अच्छे से समझा देता हूं. देखो क्या होता है. सोचो मेरे पास एक, हम लोग के यहाँ पे 1 2 3 4 5 है. ठीक है, एक लेते हैं 1 2 3, 1 2 3. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अभी एग्जिट करके देखेंगे. ठीक है, उसके बाद तुम लोग को समझ जाना. मैंने इसको एक ओरिजिनल नंबर में स्टोर कर दिया. ओरिजिनल नंबर का वैल्यू भी है 1 2 3. इसको खाली प्रिंट करने के लिए यूज किया है, और कहीं पे यूज नहीं हुआ है. और हम लोग सारे पे जितने भी चेंज करेंगे सब नम के ऊपर करेंगे. सोचो व्हाट वाज द इनपुट. मैं 1 2 3 करके देख रहा हूँ. हाँ, 3, जिसका आउटपुट होगा 3 2 1. ओके, कैसे आता है देखते हैं. सब ध्यान दो एक बार यहां पे. 1 2 3, इफ 1 2 3 ग्रेटर देन 0, ट्रू है. यस सर, ट्रू. तो इसके भी अंदर जाएगा, तो डिजिट का वैल्यू क्या होगा? नॉम मॉड 10, 1 2 3 mod 10. What will be the output? Anyone? 3. 3. What will be then? Reverse equal to. रिवर्स यहाँ पे कहाँ पे इनिशियलाइज मैंने क्या था? 0. 0 तो यहाँ पे क्या होगा? 0 इंटू इंटू 10. 10 प्लस डिजिट क्या है? 3. 3. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये +3. रिवर्स हो गया 3. नॉर्म this one, floor division equal to 10. What will be num value then? Num value will be num floor. कोई कुछ बोल रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बताओ, मैं पूरे डिटेल्स में लिख के जा रहा हूं. क्या होगा? 1 2 3 mod 10. What will be the output? फ्लोर डिवीजन होगा तो कितना आएगा? 12. 12. 12. गुड. सो मेरा इसके एट द एंड ऑफ द स्टेज अभी सर ये रिवर्स. 12 कैसा हुआ, थोड़ा समझ में नहीं. ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्लोर डिवीजन बताया. देखो, डिवीजन जब होता है तो एग्जैक्टली वैल्यू होता है. जैसे 1 2 3 करूंगा तो ये 12.3 आएगा, राइट? यस सर. बट जब 1 2 3 डबल डिवीजन 10 करूंगा, इट विल बी द लास्ट वन, ओनली द
this part. 12 12. Understood? सर मतलब जो पॉइंट के पहले रहता है बस वही वाला आंसर देता है, पॉइंट के बाद वाला नहीं देता है। एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला था अभी, अगर थोड़ी देर पहले अगर तुम्हारा ये वाला सिचुएशन में लोगे। यस सर, वो 55.50 मतलब एग्जैक्ट 55.0 वाला। एग्जैक्टली सो ये ओके। पहला इटरेशन सबको समझ में आया अभी तक? यस सर। तो एट द एंड ऑफ इसमें क्या है? नम इक्वल टू 12 एंड रिवर्स इक्वल टू 3। 3। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, यस सर। नम इक्वल टू 2, रिवर्स इक्वल टू 3। आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस। सो लेट्स से रिमूव किया ये। ठीक है, अभी आते हैं दूसरे इटरेशन में। तो अभी फिर से व्हाइल लूप में चेक करने के लिए यहां पे गया, राइट? यहां पे व्हाइल लूप में फिर से चेक किया, नम इज ग्रेटर देन 0, विच विल बी 12 इज ग्रेटर देन 0, राइट? यस सर। देन अंदर गया, डिजिट इक्वल टू नंबर 10, व्हाट विल बी डिजिट? यस सर। 2। डिजिट क्या होगा? 2। 2। देन रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स इंटू 10, रिवर्स क्या था? 3। 3 3 इंटू इंटू 10 10 प्लस 2। प्लस 2। सो कितना होगा? 2। 30, 30 2 प्लस 2 इक्वल टू प्लस 32। 32। ठीक है, यस। यस रिवर्स सर। क्या हो गया? 32। यस देन सर। नॉम, अगेन थर्ड डिवीजन नॉम 10। डिवीजन, फिर से प्लॉट डिवीजन हो गया। तो 12 10 कितना आएगा? कितना आएगा? सो। 1। यस 1। सो यहां पे अभी क्या हो गया? यहां पे लिखता हूं, नम इक्वल टू 1, आर ई वी इक्वल टू 32। 32। यस सर। अभी इसको फिर से रिमूव करते हैं, सॉरी। ओके, सबको अभी तक समझ में आ रहा है? यस अभी सर। फिर से गया, यहां पे गया, 1 ग्रेटर देन 0 है, यस सर। तो डिजिट क्या होगा? नॉम मॉड 10। सो 1 मॉड और 10। 10 क्या होगा? 1। रिवर्स क्या होगा? रिवर्स क्या था? 32। 32। 32 इंटू 10 10 प्लस 1, प्लस 1। 320 प्लस 320 1, प्लस 1। 321। 321, यस राइट? सर। यस सर। नॉम, फोर डिवीजन 10। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉम का है 1, राइट? 1। यस सर। 1 टू क्या आएगा? डिवीजन। 0.1, सो 0 आएगा ओनली, यस राइट? सर। यस सर। तो उसके बाद यहाँ पे गया, फिर से चेक किया, 0 यस। ग्रेटर देन 0, नो क्या हुआ? फॉल्स। फॉल्स। तो यहाँ पे एग्जिट किया। अभी ओके। रिवर्स में क्या है मेरे पास? 3 रिवर्स इंटू यहाँ पे क्या 1। था? रिवर्स इक्वल टू 3 2 1। अब ये पूरा फ्लो समझ में आया सबको कैसे हो रहा है? यस सर। और मैंने यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा था इसका जो वैल्यू है। तो यहाँ पे ए सेम चीज, जितना भी बड़ा नंबर दो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन करते करते जाना है। तो हमेशा याद रखो, जब भी तुम कोई भी डिवीजन करते हो, दिस इज द लॉजिक। ओके, इफ यू आर नॉट डूइंग वे एनी काइंड ऑफ नंबर, लाइक एनी काइंड ऑफ यूज्ड फंक्शन, ओके, स्लाइसिंग नहीं करना, ये नहीं करना है, तो ऐसे कर सकते हो इजीली। सर समझ में आए? हर एक रिवर्सिंग को यही फॉर्मूला सेम रहेगा, राइट? सेम रहेगा, ओके ओके। बट इस ये ओनली केस ऑफ नंबर है। अगर स्ट्रिंग होता तो सोचो, ये लाइन को मैं ना अभी मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा जो फंडा मैंने बताया, अगर इसको मैं चाहूं तो एक लाइन में भी हो सकता है। मैं इसीलिए तुमको एक्सप्लिसिटली बोला था नहीं करने का ये चीज। देखो क्या करूंगा, जस्ट मैं टाइप करूंगा, आर ई वी नम इक्वल टू, ठीक है, इसको कन्वर्ट कन्वर्ट कर दूंगा, एस टी आर ऑफ नम, देन is to minus 1 at the end, integer। देखो इसके बाद में एग्जिट डाल के प्रिंट कर लेते हैं। और ऊपर एग्जिट है ना, ये हटा देना पड़ेगा। देखो कैसे होता है।
हो गया एक लाइन में? यस सर। तो एक लाइन में भी तुम कर सकते हो, मल्टीपल लाइन भी कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला था कोई स्लाइसिंग यूज नहीं करेगा, कोई भी कन्वर्टर का टाइप कास्टिंग यूज नहीं करेगा, कोई भी तरीका यूज नहीं करेगा, बस तुम नॉर्मल वे में करोगे। अगर तुमको याद होगा स्ट्रिंग लूप लगा स्लाइसिंग, के करना था ना सर, ये तो हमें इस इसलिए तो तरह किया ना, लूप लगाया ना। यहाँ पे तुमको जो बताया क्या है प्रिंस, सर तो मतलब मेरा वाईफाई कट गया था ना, तो मैं मतलब जस्ट अभी दोबारा रिज्वाइन किया हूँ। मतलब वाईफाई चल नहीं था, फोन का डेटा खत्म हो गया था। ओके ओके ओके, सो दिस इज द लूप। तो तुमको ये समझ में आया ना मैंने कैसे समझाया है पूरा जो? नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा, अभी तो मतलब चला गया था ना वो। ओके ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है, मैंने पूरा जी। एक्सप्लेन किया अच्छे से, एक बार रिकॉर्डिंग में ये वाला देख लेना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि जनरली तुमको कोई नहीं बोलेगा कि कोई भी चीज को रिवर्स करने के लिए तुम नॉर्मल तरीके, सॉरी, ये वाला यूज करके करो। सब लोग बोलेंगे कि विदाउट यूजिंग दिस वन, ओके। सो ये याद रखना कैसे होता है, सबको याद रहा ये चीज, कंसेप्ट कैसे किया था? यस सर। और ये वाला चीज भी एक तरीका है जिसको मैंने तुमको बता दिया एज वेल, ओके। सर बाय द वे, मतलब आपने जो वो वन लाइनर जो लिखा था, दैट विल बी मच मोर शॉर्टर ना, मतलब इससे तो यस बहुत जल्दी हो जाएगा। यस। देन सर ये वाला मतलब जो नीचे जो आपने लंबा जो मेन प्रोसेस किया उसी को यूज करने क्यों बोलेंगे? तो जनरली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं स्ट्रिंग में, यस एंड सर। उसके उसके बाद आप इंटीजर में उसको इंट कन्वर्ट में कर देते हैं। कन्वर्ट कर देते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट जनरली। ओके। लॉन्ग टर्म में करते हो, बट एग्जाम में जब आता है ना, तुमको एग्जाम में कोई बोलता नहीं कि मैं तो काम तो इजीली कर सकता हूँ, बट व्हाट इज द डिफिकल्ट वे, बंदे को डिफिकल्ट आता है कि नहीं, तो सब लोग इसी को ही टेस्ट करते हैं कि ये तुमको आता है कि नहीं है, ठीक है। ओके तो सर। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी तुम करो तो दोनों तरीके याद रखो। पहला वाला आंसर ये वाला दो, अगर बंदा बोलता है नो 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 आई डू नॉट वांट दिस, आई डू वांट दिस, देन गो फॉर दिस वन। अंडरस्टूड? ओके सर। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ओके। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से समझ के करो, ठीक है। ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ओके। ओके, श्योर सर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सबको आया, राइट? यस सर, फैक्टोरियल आ यस गया इसको सर। सर। डाउट नहीं था। तो सेम चीज है यहाँ पे, क्या हम लोगों ने किया, रेंज में घुमाया, यहाँ पे जैसे सम ऑफ नेचुरल में प्लस इक्वल टू किया था, यहाँ पे इंटू इक्वल टू कर दिया, फैक्ट यस इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और फैक्टर इंटू इक्वल टू आई, राइट। तो सेम तरीके से आपका कैसे हो गया, अगर 5 है तो आउटपुट क्या आएगा, 5 है तो 5 इंटू इंटू 4 इंटू इंटू थ्री 3 इंटू टू इंटू 2 वन। इंटू 1। एंड यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो ये कि एक एक प्लस प्लस करके जाएगा रेंज में, ठीक है। यस सर। और वो सर चीज इसको, मतलब ये जो रेंज और फैक्टोरियल में जब हम इंटू करते हैं तो हमेशा वो रेंज को वन ही लेना पड़ता है ना, वरना सब यस तो यस जीरो हो यस जाएगा। यस यस यस, हमेशा 0 1 लेके इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो आपका हमेशा 1 से लेके n+1 तक जाता है। सर जनरली कैसे होता, अभी सम ऑफ करने के टाइम पे हम लोग जीरो लेने से भी चलेगा ना? कहाँ पे? सर मतलब हम लोग जैसे ऊपर में जो सम ऑफ ये किए थे। हाँ कर सकते हो, अगर जीरो लेगा ओके। कुछ इश्यू नहीं है। बट ओके। तुम्हारा तुम्हारा एक्चुअल काउंट आएगा नहीं ना, रेंज क्या करता है, यस अगर सर। मैंने तुमको बताया था, रेंज अगर रेंज 2 लेते हो, व्हाट इज द आउटपुट, तुमने अगर याद रखा होगा तो बता सकते हो। सर। अगर सोचो, यस सर। एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, आई इन रेंज, सोचो 5 लेता हूँ, यहाँ पे 5 इनपुट है, एन, ठीक है, यस सर। ओनली एन लेता हूँ, प्रिंट आई। ये समझो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं, ओके। व्हाट इज द आउटपुट, अगर रेंज आई लेता हूँ, 1 to अगर 5। 5 लेता हूँ, फाइव है वन टू बट फाइव जीरो नहीं वन है, टू फोर 1 to 4, 0 to 4। एग्जैक्टली, जीरो टू जीरो फोर है। टू फोर है। क्योंकि यस हमने सर। रेंज डाल दिया ना सर, इस वजह से। एग्जैक्टली exactly. जब अगर रेंज एन करते हो ना, हमेशा याद रखो कि ये 0 से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज में आइधर 0 मिक्स करूं, प्लस करूं, या 0 मल्टीप्लाई करूं, उसका वैल्यू है क्या, आइधर वैल्यू। सर। मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, या यस प्लस सर। करूंगा तो 0 वैल्यू हो जाएगा, लास्ट वाला वैल्यू आएगा ही नहीं। तो यस सर। आइधर तुम यहाँ पे i+1 करके हैंडल करो, यहाँ पे जब कर रहे हो, नहीं तो यहाँ पे रेंज घुमाने के टाइम 1 × n+1 कर दो, 1 to n+1। ओके। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर।
तो ये तरीका होता है, ये तरीका होता है समझने का कि रेंज क्या कर रहा है। अगर तुमको रेंज क्लियर है, तुम इसको कर सकते हो प्रॉपरली। तो ये रेंज फंक्शन का भी और दूसरे दूसरे तरीके हैं कि अगर सोचो मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया रेंज 2 टू कमा समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड देन स्टॉप इंडेक्स मैंने कुछ लेट्स से एन दे दिया। एंड देन एक सपोर्ट इंडेक्स में सोचो 2 दे दिया। इसका आउटपुट क्या आएगा एनीवन? यहाँ पे 1 देता हूँ। सर इसका आउटपुट आएगा 1 3, बस 1 और 3। एग्जैक्टली exactly. तो यस ये चीज सर। समझो, ये चीज समझ रहे हो ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। हमेशा रेंज फंक्शन जैसे हम लोग ने स्टार्ट स्टॉप किया था ना, याद है, स्टार्ट स्टॉप एंड यस सर। स्टेप। यस सर। तो वही तरीके से ये चलता रहता है। तो अगर तुमको ये चीज अब अच्छे से समझ में आई, तुम कहीं भी कहीं कोई भी लूप को यूज कर सकते हो इन ए प्रॉपर मैनर। कहीं पे इशू नहीं आएगा। ठीक है, सबको अभी क्लियर हुआ ना ये चीज? यस सर। यस। चलो, मैं कमेंट करके रख रहा हूं सो दैट तुमको अगर यूज है तो बाद में देख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई अगर डाउट है तो और चीज। चलो ये हो गया, अभी आते हैं नेक्स्ट में। तो फैक्टरल सबको क्लियर है, एक एक करके वो इम्पैक्ट करता है और इसको इनटू करता गया। अभी लास्ट उसके नेक्स्ट वाले में आते हैं। टास्क 5 क्या था? प्रिंटिंग योर 1 2 1 2 3 4 5। यस सर। यहाँ पे हम लोग ने नेस्टेड लिप यूज किया, जो कि अभी तक हम लोग ने क्या क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। या नहीं किया था? नहीं किया था, राइट राइट। समझा है नहीं था, बट तुम लोग ने कर दिया। आई थॉट कि यहाँ पे तुम लोग को दिक्कत होगी, बट समहाउ यू पीपल फाउंड आउट कि कैसे करना है। तुम यस लोगों ने सर। कैसे किए? ऐसे ही किया ना, कि और यस कुछ सर। तरीके है? सेम वे। Okay, chalo, good one. This is I liked कि at least people are understanding whoever has completed this. So so let's say यहाँ पे मैं एक बार छोटा सा चीज में कवर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करें, जैसे आई इन रेंज 1 to 5 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 ले रहे हैं और यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे। और जे में रेंज में ले रहे हैं 1 2, सेम 1 + 5, सो सेम 1 2 3 4 5। और ईच इटरेशन के लिए प्रिंट जे कर रहे हैं और एंड कर दे रहे हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जे, अगर जे इक्वल टू 1 फर्स्ट लूप यहाँ पे घुमा रहे हैं 5 बार इटरेशन, तो दिस इज द रो। एंड what is the row number, and j is the column. कॉलम नंबर। जो is the column number. J will be like this 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल। उल्टा बोल रहा हूं, मतलब ऐसे सोचो, तुमको समझाने के लिए ऐसे बना बेहतर है। इट इज द रो, ओके। सो क्या हुआ, यहां पे रो में आई आया और कॉलम में जे आया। सो क्या हुआ, फॉर आई इन रो 1, 1 में आया, इसके अंदर आया 1 2 3 4 5, 1 पहले प्रिंट किया 1। उसके बाद जब नेक्स्ट इटरेशन में आया, तो यहाँ पे बिकॉज एक ही बार प्रिंट करके मैं निकल रहा हूं और कुछ ज्यादा प्रिंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जे का 1 था, सेम 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद फॉर 2 गया, तो इसके अंदर 2 था आया, तो 1 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद 3 में आया, इसके बाद 1 2 3 था, 1 2 3 प्रिंट हुआ। उसके बाद 4 में आया, यहाँ पे फोर्थ कॉलम में रो में आया, यहाँ पे जो 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 आया। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में आया और 1 2 3 4 5 होगा, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट किया। तुमने सब लोगों ने कर दिया है, तो मैं इसको ज्यादा कंफ्यूजन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लगा था कि तुम लोगों को इसमें डाउट होगा ज्यादा, बट लकीली सबको डाउट नहीं था, ये वाला सबको क्लियर हुआ था। दैट इज अ गुड थिंग। सो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जिसमें डाउट है, डाउट था नेक्स्ट वाले में, राइट सबको? यस सर। यस सर। जिसका नाम है पैलिंड्रोम, ओके। यस सर। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली पैलिंड्रोम में? तो पैलिंड्रोम का सबसे बढ़िया तरीका है एक लाइन, ओके। मैंने तुमको टास्क में यहां पे क्या बोला था कि यूजिंग ए लूप फाइंड इफ ए स्ट्रिंग ए पैलिंड्रोम नॉट, बिकॉज इसका अलग तरीका क्या हो सकता है? एनीवन, एनीवन कैन आंसर, इसका अलग तरीका क्या है? सर इसको उल्टा करके देखो, रिवर्स करके, और दोनों क्या? का रिजल्ट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं एक लाइन में क्या लिख सकता हूं? सर इसको वही टाइप कास्टिंग करके कर सकते हैं। हाँ, हम्म।
सर मतलब वही है तो टाइप कास्टिंग ये तो स्ट्रिंग है सर। ना। नो सर, ये स्ट्रिंग है सर, स्ट्रिंग को डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, प्रिंट पैलिंड्रोम इक्वल्स टू ये करके कर सकते हो गया ना ये खत्म। यस सर। हैं। यस सर। और यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा अभी के तुमको दिखाने के लिए। तो मैं ये एक लाइन में भी कर सकता हूँ, राइट। ये एक यस सर। तरीका है जो कि हम लोग ने मना किया था, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अभी आते हैं दूसरे तरीके पे। तो यहां पे मैंने क्या किया, ईच पैलेंड्रम करके एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम ट्रू रख दिया। वाई ट्रू रखा? अगर पैलेंड्रम है तो ये वैल्यू होगा, अगर पैलेंड्रम नहीं है तो अंदर हम लोग वैल्यू शिफ्ट करेंगे, ओके। और यहां पे मैंने क्या किया, सो लेफ्ट को जीरो सेट कर दिया। व्हाट इज जीरो? तो अगर सोचो ये था वन टू इज बराबर वन जीरो टू विल बराबर बी टू। आवर फर्स्ट अल्फाबेट और फर्स्ट नंबर। यस, 1 मिनट यहां पे रखता हूं। तो मेरा हो गया था यहां पे देखो, 1 2 M A D A M 2 1, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट में जीरो में सेट कर रहा हूं, और राइट कहां पे सेट कर रहा हूं, लेंथ S-1। लेंथ अब एस मतलब लेंथ अब S-1 मतलब कहां पे जाएगा, कौन सा वाला वैल्यू, वन पे। राइट। यहां पे क्या चेक है, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, तो यहां का वैल्यू लेफ्ट है जीरो, और लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 8, राइट। यस। यस तो यस। यहां सर। पे चेक करें जीरो लेस देन 8, ये अच्छे से समझो, जीरो लेस देन 8, ये सर ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू। तो है। तो इसके अंदर गया, इफ एस ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू एस ऑफ राइट, एस ऑफ लेफ्ट इक्वल टू, एस ऑफ लेफ्ट मतलब एस ऑफ जीरो 1, यस सर, वो जीरो है। नॉट इक्वल टू एस ऑफ राइट, है क्या, एट। फॉल्स है, फॉल्स है। राइट। और तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, पैलेंड्रम अभी तक हम लोग का कुछ एग्जिट नहीं होगा, यहाँ पे गया है। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1, यहाँ पे आज जो 1 = 1 है तो यहाँ पे ट्रू हो गया ना, यहाँ पे जाएगा नहीं, तो आएगा यहाँ पे। इफ एल्स इफ का क्लॉज यहाँ तक है बस, हाँ, यहाँ पे नहीं है, ये वाइल लूप है, वाइल लूप ये यस है। सर। तो लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1, लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1, लेफ्ट कितना हुआ 1, राइट कितना हुआ 8 - 1 7। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नो दिस नो मीन्स सर, समझ में लेफ्ट नहीं इक्वल है। टू लेफ्ट प्लस 1, दिस मीन्स राइट इक्वल टू राइट राइट -1। -1। राइट -1। सो यहाँ पे लेफ्ट प्लस 1 इक्वल टू हुआ तो लेफ्ट कितना वैल्यू था, जीरो। जीरो। यहाँ पे दिखा था ना, याद है। सर। जी। अभी यहाँ पे कितना हुआ, +1 हुआ तो 1 हो गया, वन तो। वन। और राइट कितना हो गया 8 था, कितना हुआ। यस। -1 7। तो अभी लेफ्ट किसको पॉइंट करेगा, सब पहले तो यहाँ पे आ जाओ, एक एक जाते हैं। उसके बाद लेफ्ट लेस देन राइट, लेफ्ट लेस देन राइट है मतलब 1 < 7 है। अभी 1 7 है यस ना, सर। यहाँ पे लेफ्ट यस सर। 1 है यस और सर। 7 है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू है, तो इसके यस अंदर सर। गया। उसके बाद क्या चेक किया, ए सब लेफ्ट, ए सब लेफ्ट यस कहाँ पे सर। पॉइंट करेगा, अभी यहाँ पे वन पॉइंट अभी करेगा। करेगा। वन को करेगा। 2 को करेगा, 1 को कैसे करेगा। आई मीन सर, मतलब इंडेक्स का बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, यस, ए सब यस सर। 1 = 2, यस राइट। सर। यस सर। हम्म। सेम चीज ए सब 7 = 2, टू। तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, राइट, यस। क्योंकि ये दोनों ट्रू है, 2 = 2 है। तो यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, राइट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, राइट। सबको समझ में आ रहा है? बट सर ये प्रोग्राम आई थिंक ये फेल हो जाएगा, क्योंकि जिसमें लेफ्ट और राइट में संख्याएं मतलब बराबर हैं, तो इस वजह से शायद ये काम कर रहा है। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग चेक कर रहे हैं ना, कहाँ पे हम लोग इक्वल टू जाके कैसे यहाँ पे एग्जिट होगा हम लोग देखेंगे ना अभी। वेट हाँ। क्यों, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये ओके सर। फेल नहीं होगा, क्यों नहीं फेल होगा, देयर इज रीजन बिहाइंड इट। इसीलिए तो जहां पे देखो, अगर सोचो तुम किसकी बात कर रहे हो, जैसे सर मैं मतलब ये इसलिए कह रहा हूँ, मतलब इसमें क्या है, इसमें मतलब इवन ऑड नंबर है, जो हम्म, काउंटिंग में ऑड ऑड नंबर है, क्योंकि बीच में डी है, तो हाँ हाँ डी के लेफ्ट साइड और डी के राइट साइड दोनों का नंबर बराबर है। हाँ अगर हाँ ऐसा होता
कि मतलब पूरी की जो स्ट्रिंग की लेंथ होती अगर वो इवन होती तो फिर वहां पर काउंटिंग नहीं कर पाता, क्योंकि फिर वहां पर बीच का मिलता नहीं ना उसको। अच्छा अच्छा, तो एक काम अब करते हैं, मैं ठीक समझ है गया मैं ठीक है क्या कहना ठीक चाहता है हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा, और एक चीज बताओ, तो डी हटा दूं? जैसे ये चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ चलेगा। क्यों चलेगा दिन? नहीं तुम्हारा ही इस लॉजिक है ना। हाँ चलेगा सर, इसमें भी चलेगा। हाँ, नहीं नहीं, डी नहीं, मैं सोच क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैं समझना चाहता हूँ कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? बट चल फेल क्यों जाएगा। होगा? तुम क्यों बोल रहे हो कि फेल होगा? कहाँ पे फेल होगा? मैं जिस हिसाब से सोचा था तो फेल, अब ये वाला तो चल जाएगा सर, ये तो चल जाएगा। कैसे चल जाएगा यार? अभी बोल रहे थे फेल होगा। नहीं ठीक है। मतलब उस टाइम पे लगा। ठीक है ठीक है, अभी जाएंगे उसमें, वो चीज में जाएंगे, ओके। ओके, मैं पहले इटरेशन कंप्लीट कर लूं, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको ना क्या चल रहा है? ठीक है। यस सर, तो चल रहा है, आ रहा है। या सेम चीज ये पूरा ट्रैवर्स करता हुआ जाएगा, और ये चीज को सब जगह पे चेक करता जाएगा। और इसका क्या होगा? जब लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, कहां तक फिर चलेगा? यहाँ पे वो यहाँ पे क्या था? 17, देन 26 हुआ, तो थ्री देन थर्ड 5, इंडेक्स नंबर तक चलेगा। उसके बाद 4 4 हो गया, राइट। यस सर। जब 4 4 हो गया तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। ओके। तो ये पूरा का पूरा इटरेशन हम लोग को कंप्लीट करना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे इक्वल टू हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ? 4 और 4 तो दोनों सेम ही होंगे ना हमेशा। यस सर। तो इसलिए वो वहां पे एग्जिट कर गया। ठीक है। अगर सोचो, अगर सोचो जैसे प्रिंस ने बताया, सो उस केस में क्या होता, उसका एक करके देख लेते हैं। अगर सोचो मैं यहां पे डी हटा देता। सर तो सिर्फ ए आएगा नहीं, आई गेस। देखो इस पैलेंड्रोम में आया, क्यों आया? अब तो इस पैलेंड्रोम आ गया। क्यों आया यहाँ पे? अरे पैलेंड्रोम मतलब क्या है, तुम समझ रहे हो आदित्य? मेरे को बताओ पहले, तुमको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर, वन, यस सर। टू, एम, ए, ए, एम, टू, वन। यस सर। तो यहां से अगर पढ़ो जो आया, यहां यस से सर। पढ़ो। यस तुमको सर। यस तुमको सर। अगर पता होगा, जो बोलते हैं ना, आगे से देखने से जैसा, पीछे से देखने से वैसा। यस सर। यस सर। समझ जाओ। आगे से पढ़ोगे तो जैसा आएगा, जैसे हम लोग का कटक होता है ना, कुड़िया में कटक, यस सर, राइट। कॉट का। यस। सो यस दैट सर। इज दैट इज ए पैलिंड्रोम, राइट। यस सर। यस सर। So if I write something like even K A T A K, this is also a palindrome. यस यहाँ सर। से जैसा है वैसा ऐसा है, right? यस सर। So write that like that. Although it is not the right spelling, I am just telling यस you. सर, Okay. यस सर। यस सर। So हिंदी में similarly, लिखने में सही आएगा सर। क्या? हिंदी 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 कटक। हाँ, हिंदी कटक, yes, हिंदी कटक आएगा, like this, right? यस सर। I know, yeah, how to write Hindi. हाँ। Anyway, this is the Hindi katak, okay, and Odia katak is like this, same, right? यस सर। So understand why it is called a palindrome, because you are actually facing the same things in the both way. So this is the smallest, easiest way to do it. Is a string palindrome, but here we are just shifting our logic, like how to complete it using without using a function, like using the string slicing, and we are just completing it. In case it is breaking, whenever the left is not equal to right, ऑप्टिमल वे, ये ऑप्टिमल वे है, क्योंकि हम लोग नहीं तो क्या ट्रैवर्स करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और उसको एक जगह पे स्टोर करो, उसको एक बार ट्रैवर्स करो। यहाँ पे हम लोग क्या करें, सिमिल सेम मेमोरी में हम लोग हैंडल कर रहे हैं, बट जहां पे मिडिल आ रहा है वहां पे जस्ट एग्जिट मार रहे हैं, राइट। यस सर, समझ में समझ। आ रहा है सबको? यस सर, अभी समझ यस गया। सर। और और कोई डाउट है इसमें? आगे आज का सेशन बढ़ाएं, क्योंकि 2 क्लास हम लोग बस प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं तुम लोगों के लिए, सो दैट तुम लोगों को समझ में आए। ये सब चीज क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर एंट्री लेवल प्रोग्रामर्स, ओके।
कोई कुछ सर पूछा नहीं। मुझे लग रहा था कि फॉल्स, मैं फॉर से ट्राई कर रहा था तो मतलब कंडीशन समझ ही नहीं आती कि मतलब बनाएंगे कैसे, तो इसी वजह से वो नहीं हो पा रहा था। मैंने इसीलिए बोला था कि दो लूप होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक जी वाइल लूप होता है, हम लोग दोनों पढ़े थे जी राइट। जी। तो तुम लोग इसीलिए हमेशा याद रखो कहाँ पे फॉर यूज करना है, कहाँ पे वाइल यूज करना है। कहाँ पे फॉर यूज करना है, कहाँ पे वाइल यूज करना है, मैं फिर से एक बार इटरेट कर देता हूँ। फॉर इज अप्लाइड व्हेन एवर यू वांट टू अप्लाई टू ए रेंज ऑफ लिस्ट, ओके। रेंज में जाते हो, इटरेट करना चाहते हो, एक दो तीन ऐसा करके। और वाइल कहाँ पे होता है, जहां पे मेरे को कंडीशन यूज होता है, कंडीशन अच्छा चेक। सर, मतलब यहाँ पर फॉर यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, देर इज अनदर वे बट बेटर टू यूज वाइल, बिकॉज यहाँ हाँ, पे मैं चेक करूंगा डिफिकल्ट हो कि जाएगा, समझ समझ नहीं आ रहा था उसमें। कर सकते हैं, कर सकते। सी फॉर में अगर यूज करोगे ना, देखो वाइल में क्या होता है, यहाँ पे मैंने वाइल यूज कर दिया और उसके बाद ये लेफ्ट से राइट है, तो मैं एक ही इटरेशन में क्या किया, एक के बाद एक करके यूज करता चला गया, और अंदर मैंने एक एस लेफ्ट एस राइट करके लगा दिया, जहां पे मैंने यस। दोनों मूव हो रहा है, लेफ्ट भी आगे मूव हो रहा है, राइट भी आगे मूव हो रहा है। राइट बोल रहा। फॉर में मैं इंक्रीमेंटल जनरली लगा नहीं पाता हूँ राइट। तो उसमें क्या होगा, अगर सोचो मैं फॉर लिख के लिखा, क्या लिखोगे, आई इन रेंज ऑफ लेट्स से n+1 और यस n+1 राइट। व्हाट विल हैपन ओवर हियर, सो यहाँ पे आई करके एक एक करके मैं ट्रैवर्स करूंगा, और उसके बाद लेट्स से क्या हुआ, um, मेरे पास सोचो 1 2 n+1, तो यहां से एक एक करके ट्रैवर्स करूंगा, और यहां से n+1 को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। बट यहां पे मेरा n+1 आने के लिए एक दूसरा वेरिएबल चाहिए होगा, यहां पे क्या करूंगा, मे बी फॉर जे इन, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे n+1 से स्टार्ट करूंगा, 1 में स्टार्ट करूंगा, -1 करूंगा राइट। तो यहाँ पे एक पहले से एक स्टार्टिंग से जा रहा है और एक एंड से जा रहा है, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू जे। समझ में आ रहा है ना, प्रिंट नॉट पैलिंड्रो, ठीक है। इसके अंदर आई प्लस प्लस होता जाएगा, इसमें माइनस होता होता जाएगा। समझ में आया। तो क्या किया यस। मैंने, रेंज में n+1 तक गया, 1 से n+1 तक, तो एक से लेके ये n+1 तक जाएगा, और यहां पे क्या होगा, n+1 से लेके 1 तक आएगा, एक एक माइनस करते करते, ठीक है। और ये चीज मैं चेक करता रहूंगा, ये इसके साथ सेम है क्या, ये इसके साथ सेम होता था, चलता रहेगा, तो इट इज ऑल्सो हायर इटरेशन ऑल्सो। सो इफ यू वांट टू अगेन मिनिमलाइज, देन एक मिडिल पॉइंट फाइंड करोगे, क्या है n+1/2, और उसके बाद वो मिडिल पॉइंट में स्टॉप करोगे, अगर अगर तुमको थोड़ा बेटर तरीके करना है, बट दिस इज ए बेटर अप्रोच टू डू दिस, इसलिए मैंने यस, ये वाला यूज किया, सिंपलेस्ट वे है, सिंपलेस्ट है, बट ये कर अंडरस्टैंडिंग सकते हो, होगा। फॉर में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, यस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। समझ में आया सबको। यस सर। जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं ना, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि फॉर कहाँ पे यूज करूं कि नहीं करूं, वाइल यूज करूं कि नहीं करूं, तुमने सोचा ही नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा। बट आई विल ट्राई, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, समझो, अगर नहीं समझ में आता है पूछो और प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट तुमको आइडिया आते रहेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। These are that's I told you again and again. These are interview questions. What I'm trying to tell you. Generally, nobody will tell you practice all this thing and spend times over here. Why I'm spending time with this kind of cases? Last class we spent over one assignment. Today I'm spending with 6 different tasks. Why? If you were covered, I could have just completed 2 of them. But only 3 to 4 people completed only. Other than that, nobody. So that's why I am covering for everyone. Although you're wasting time, this is also a practice for you. So take some time to learn this whatever we are covering, and this will be in your interviews, okay. It will be there if you want to build a career around Python and IT, okay. It will be there in your interview. And I'll tell you one thing, these set of programs, even right now 10 years 8 years people are also failing to write sometimes, okay. They are not able to write as well right now also, okay. Few people are there who doesn't have practice, who follow like chat gpt,
they are not able to write. Okay. If you do not practice, you cannot write. We are also asking these questions for experienced programmers, not even who are coming right now, because these are easy things we're asking and people are not able to do it. Okay, that's why I'm telling you, don't waste your कॉन्सेप्ट time. Yes, sorry. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सर अच्छा है आई थिंक। एग्जैक्टली exactly, ये चीज एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। तुमको अगर ये समझ में आता है ना, सब चीज समझ में आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज क्लियरली तुमको समझ में आएगी, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। और ये चीज अगर तुम प्रैक्टिस करके जाओगे ना, अगर आज के डेट में इसको लेके और 10 प्रोग्राम करके जाओगे, ऐसे मेरे पास 250 प्रोग्राम्स है। 250, एक दो नहीं है, 250 प्रोग्राम है। और मैं ये एजेंसी जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी कंपनी में, उनको भी करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि नहीं करवा रहा हूं, उनको भी करवा रहा हूं ये प्रोग्राम। वाई? क्योंकि इससे हैंड प्रैक्टिस हो जाए। एक बार हैंड प्रैक्टिस हो गया ना सारे कंसेप्ट के ऊपर, तुम इजीली आगे बढ़ सकते हो। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि कंसेप्ट समझो, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कहीं पर डाउट हो रहा है, पूछो। जैसे तो ये दो लोग पूछ रहे हैं, प्रिंस आदित्य, देर इंटरेक्टिव। संग्राम समटाइम्स पूछ, अमृत पूछता है कभी कभी, मेघना कभी कभी पूछती है। तो तुम लोग भी पूछो, जो लोग नहीं पूछ रहे हो। ओके, बिकॉज उससे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे और तुम क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हारा और डाउट क्लियर होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर लूप करके कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट इट इज कॉम्प्लेक्स। वाई टू डू दैट? एक लूप में अगर ट्रैवर्स हो सकता है, मैं दो लूप ट्रैवर्स करके ज्यादा मेमोरी क्यों खाऊंगा? मतलब यस नहीं है। ठीक है, चलो आज के क्लासेस में चलते हैं। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्यों बोल रहा था, मैं तुमको कवर कर दूंगा थोड़ा, सर, बिकॉज आप बोल रहे थे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या पढ़ाऊंगा मतलब। पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। श्योर सर। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि मैंने इसी इसी के अराउंड तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था। ऑपरेटर बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक हो गए, लॉजिकल। बीट वाइज हो गए, लॉजिकल हो गए, कंपैरिजन हो गया। ओके, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम लोग बस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जैसे जिसको मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, और इसके ऊपर मैं तुम लोग को एक सेटअप टास्क दूंगा जो कि तुम फिर से करके आओगे। श्योर सर। और मैं जो भी टास्क दे रहा हूं ना, मैं तुमको एग्री करके बोलता हूं, बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, देखो मैं आंसर देखूं नहीं देखूं फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ने, एक बंदे ने गलती किया था, उसके लिए मैं देखा, इसलिए मैंने एक बार फिर से कवर किया। कुछ कुछ जगह पे कवर कर रहे हो, कुछ कुछ जगह पे इश्यू कर रहे हो, कुछ कुछ जगह पे बंदे गलती कर रहे हैं। ओके, एक बंदे ने पोस्ट किया था आंसर, वो गलत था। स्टार्टिंग में किसी ने पोस्ट किया था एक, बट वो चीज मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि तुम लोग को था। बट ठीक है, मैं देखता हूँ आंसर्स, ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ। अगर तुम नहीं करोगे तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ। ठीक है, ये गारंटी। ओके, लेट्स गो फॉर ऑपरेटर। व्हाट आर अरिथमेटिक? अरिथमेटिक मीन्स एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग जो भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक का चीज पढ़ा होगा, राइट? सो अरिथमेटिक में हम लोग सारी चीज करते हैं, जैसे कोई भी एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल दिस थिंग। ओके, सो दीज आर बीइंग डन बाय दिस arithmetic operators. So we have already covered. That's why I have already given you advance. Like you, if you go through the task, you'll be able to understand it more. So this is a plus operator, which is used for addition. This is minus, subtraction. You can see the examples over here. Okay. So यस सर। similarly, multiplication here, division over here. Okay, see division how it is happening. Understood? 3.333. यस सर। But if you go for this one, this is called Floor. floor division. यस सर। So it gives you the only floor part. इंटीजर पार्ट। इंटीजर Okay? पार्ट। Yes. Then comes the modulus 10.3, 3, 3 the 1, and it is the remainder. Okay? Then यस। this is the exponent one. Exponent means what? Square. 2 to the power 3. पावर। Okay? That means यस। 2 into 2 2 into 2। into 2. Okay, 8. Understood, everybody? यस सर। यस How Yes, it is sir. happening? Okay? These are the arithmetic operators. Okay? These are the different kind of operators you can come across in your all kind of arithmetic things. These are all calculator related things. Okay? So, I'll go for the next one, which is local global. Before that, I'll just put it a task. Okay? At the end. Okay? We'll be covering across something like this. But yeah, let me cover the local global variable as well.
सो इफ यू गो फॉर लोकल ग्लोबल वेरिएबल, लेट मी रिमूव दिस। सब लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में है? ऑलरेडी हम लोग ने इसके ऊपर काम कर चुके हैं, इसलिए देखो कितना सेशन कितना इजी हुआ तुम लोग को यस सर। समझने के लिए, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है। अभी तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको याद हो गया, अरे सर ने एक बार बोल दिया, अभी हम लोग ने प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, राइट। हम लोग इसके यस सर। ऊपर देखो, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम भी कर चुके हैं, और देखोगे यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिख चुके हैं, ये सब चीज हम लोग को ये सब असाइनमेंट ऑपरेशन आएगा सब, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट ये चूंकि हम लोग कवर कर चुके हैं। यस सर। ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर ये कवर कर चुके हैं। दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये कवर कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग क्लास से ए प्लस का ऑपरेटर कर, ये दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। यस सर। This is assignment operator. We have already covered all this. So that's why I'm telling again and again. If practice then आप लोगों को easy हो जाएगा समझने के लिए। चलो anyway, so इसलिए मैं इसको डिटेल्स में जाके समझाता नहीं हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं थोड़ा तुमको एक दे दूंगा एक टास्क, सो दैट तुमको और क्लियर हो जाएगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से उसको प्रोग्राम में बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। सबको दिख रहा है ना? कोई डाउट है क्या इसमें, ये नो चीज सर। में? किसी को, एनीवन? नो सर। No, sir. चलो, लोकल ग्लोबल वेरिएबल। लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स होता क्या है? सोचो, मेरा हर चीज का एक स्कोप होता है। पाइथन इज ऑल अबाउट स्कोप्स, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप? सोचो, मैंने यहां से एक लूप स्टार्ट किया, और यहां पे एक लूप एंड किया, लूप 1, और यहां पे मैंने एक्स लिखा, वाई लिखा, जेड लिखा, कुछ भी लिखा। यहां पे जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूं, बिकॉज तुमको पता होगा पाइथन इज ए व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर, ये स्क्रिप्ट, डायनामिक स्क्रिप्ट, राइट। यस तो सर। डायनामिक में क्या होता है, जब भी तुम एक्स इक्वल टू 1 लिखते हो, ये इसका वैल्यू इंटीजर होके यहां पे स्टोर हो जाता है। अगर एक्स इक्वल टू 1 2 3 करते हो, ये ऑल्दो इट्स इंटीजर, ये जबकि डबल कोटेशन में ये स्ट्रिंग करके सेव करता है, राइट। अगर एक्स यस इक्वल टू 5.33 लिखूंगा, इट्स ए फ्लोट, राइट। यस सर। तो ऐसे वेरिएबल स्टोर होता है, और हर वैल्यू वैल्यू ये इसका चेंज होता रहता है, और ये एक्स का वैल्यू हमेशा वेरिएबल जो होता है उसी का वैल्यू के ऊपर ओवरराइट हो जाता है, राइट। इसलिए वो डायनेमिक बोलते हैं। इसलिए हम लोग ने, जब भी हम लोग यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम कर रहे थे, अगर सोचोगे, नम वाला प्रोग्राम कहाँ गया, नम मड वाला, या यहाँ पे, अगर ऑल्दो मैं नम को यूज कर रहा हूं, मैं उसी को ऊपर घुमा रहा हूं और उसके वैल्यू चेंज करते जा रहा हूं, राइट। मैं और एक नम यूज नहीं कर रहा हूं, और इसका जो ओरिजिनल नम एट द एंड मैंने इसको इसलिए सेव किया था, बिकॉज एट द एंड नम का वैल्यू क्या हो गया था, 0। याद है सबको? यस सर। तो हम लोग किसी के अंदर, तो इसका नम का स्कोप कहां पे है? यहां से स्टार्ट हुआ नम का स्कोप, और एंड कहां पे हो गया, यहां पे, हम्म। ओके। यहां पे देखो, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हो गया। और ये डिजिट का स्कोप क्या है? यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हो गया। हम्म। जब ये लूप खत्म हो गया, डिजिट का स्कोप चला जाता है, राइट। क्योंकि इसके बाहर कहीं पे डिजिट यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो नो इसका सर। स्कोप ही खत्म हो गया। ये स्कोप का फंडा क्यों आता है जनरली, अभी बताता हूं। पूछो एनीवन, ये जो स्कोप का फंडा आता है, ये क्यों आता है? तुमने सोचो, एक मेमोरी यहां पे रख दिया, ये चीज कंसेप्ट समझो, ओके। एक मेमोरी रख दिया जिसका वैल्यू एक्स, और इसके लेट्स से वैल्यू है 1 2 3। इस चीज को अगर सोचो मैं कहीं पे यूज करता हूं, इसके लिए कुछ मेमोरी मेरे बायोस में स्टोर हुआ, हम्म। लेट्स से 4 बाइट्स, 1 2 3 और एक नॉल, राइट। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर। यस। यस तो सर। एक सोचो, ये मेमोरी में स्टोर हो गया। ये जो चीज मेमोरी में स्टोर हो गया, इसको मेरे को फिर से खाली तो करना पड़ेगा ना। ये हमेशा रिटर्न होके तो फॉरएवर तो नहीं रहना चाहिए, राइट। इसको मेरे को अगर मैं खाली नहीं करूंगा, सोचो मेरा एक रैम है जिसका लेट्स से 8 GB रैम है। 8 GB में मैं अगर सोचो 1 TB का डेटा प्रोसेस करूंगा एक के बाद एक, और मैं ये चीज को कभी खाली ही नहीं करूंगा, तो क्या होगा, 8 GB के बाद बैठ जाएगा ना। हम्म। क्योंकि मैं हर चीज, हर वैल्यूएबल का कुछ चीजें सेट कर रहा हूं। सोचो इतने सारे प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक फॉर लूप लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, और ये चीज को अगर खाली नहीं करेंगे, कि व्हाट विल हैपन एट द एंड, हर हर मेमोरी लोकेशन में कोई ना कोई वैल्यू होगा, उसके बाद वो कभी खाली हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, राइट।
तो हम लोग को उसको डिलीट करना पड़ेगा। जो कि हम लोग, अगर किसी ने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, देर इज ए थिंग कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, अनदर थिंग कॉल्ड डिस्ट्रक्टर, राइट? ये सर सुना था, बहुत यस। टाइम हो गया। या जो भी कभी भी क्या कुछ स्टार्ट करते हो तो कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करते हो, डिस्ट्रक्टर करते हो तो मेमोरी को डिलीट करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज करते हो। बट पाइथन में ऐसा है नहीं। तो पाइथन क्या करता है, इट हैज इज ओन मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी। ओके, ओन मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो ये क्या करता है, जितना भी स्कोप, जब कोई भी वेरिएबल का स्कोप खत्म हो गया, उसके बाद वो वेरिएबल को मेमोरी से फ्री कर देता है। जैसे यहां पे अगर डिजिट हो गया, जब व्हाइल लूप खत्म हो गया और डिजिट का पूरा यूजेज खत्म हो गया, इस स्कूप के बाहर अगर डिजिट टाइप करोगे ना, यहां पे प्रिंट डिजिट करोगे ना, इसका वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज इसका स्कोप खत्म हो गया। तो ये चीज खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इसका स्कोप इसी के अंदर ही था। यस सर। बट यहां पे रिवर्स टाइप करोगे, इसका आएगा, बिकॉज रिवर्स बाहर था। So हम्म। this is called local variable. This is called global variable for this function. Okay, let's say I am writing this loop. For this, it is a global variable. That's why it is reverse equal to 0. And we started it over here. Original num is also a variable, which is global variable. Num is also a global variable. But इसके अंदर इसका लोकल हो गया। अभी ये चीज का वैल्यू अगर सोचो, ये नम का वैल्यू मेरे को कभी चेंज करने ही नहीं देना है, तो मेरे को क्या करना है, एक ग्लोबल वेरिएबल एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है, जिसका कीवर्ड होता है ग्लोबल। ओके, ये एक्सप्लिसिट चीज है जो कि मैं बता दूंगा अभी कोडिंग करके। और अगर नॉर्मल करते हो, दैट बिकम्स लोकल, बिकॉज उसका वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। अगर तुमको यहां पे स्लाइड में समझाने जाऊं, तो मैं एक बार पढ़ देता हूं, तुम लोग को और ज्यादा समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल डिफाइंड साइड आउटसाइड एनी फंक्शन, जो हम लोग का यहां पे था। सॉरी, कहां पे गया? यहां पे आउटसाइड था। दिस आर ग्लोबल वेरिएबल, राइट? यस सर। और जब लोकल वेरिएबल में हम लोग का आते हैं, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन तुम लोगों को समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में अगर होता है तो। बट लूप के अंदर मैं इसलिए बता दिया क्योंकि अगर सोचा इसको एक मैंने फंक्शन लिख दिया, ठीक है, उसके लिए। जी सर, फंक्शन के बाहर जो होता है वो ग्लोबल होता है, फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली, फंक्शन के बाहर जब होता है ग्लोबल होता है, और फंक्शन के अंदर जो होता है वो एक लोकल होता है। लोकल होता है। तो यहां पे अगर सोचो कि ये लूप को मैं एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, जहां पे मैं नम एज एन इनपुट लेता हूं। फंक्शन हम लोगों ने यस सर। कवर नहीं किया ना अभी तक, कि फंक्शन कवर किया है? नो सर। ओके, तो मैं करके दिखा देता हूं, तुम लोग को एक जी बार सर, समझ में आ ये जाएगा। इनपुट होगा तो आउटपुट ग्लोबल में आएगा। यस, फंक्शन एंड ग्लोबल लोकल वैर्स। 9:45 तक क्लास करेंगे तो चलेगा ना? 9:32 है, चलेगा ना सबको? हाँ हाँ, कोई यस दिक्कत सर, यस सर, चलेगा सर। सॉरी, मैंने फोल्डर बना दिया, एक मिनट। ओके, सोचो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में क्या करता हूं, हमेशा जो भी कोई भी चीज को मैं जब मॉड्यूलराइज करने के लिए कोशिश करता हूं, सोचो मेरे पास ए है, बी है, दो इनपुट है। मैं आज के दिन में सम लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, प्रिंट ए प्लस बी, राइट? ये चीज लिखता हूं। यस सर। बट सोचो, मैं ये चीज को ए प्लस बी में हर बार हार्ड कोडिंग करता हूं, ए 3 है, बी 5 है। तो मैं क्या करता हूं, हर बार सोचो 3 एंट्री करूंगा, 5 एंट्री करूंगा, और इसको ऐसे करके रिटर्न करूंगा, प्रिंट करके डालूंगा इनपुट करके। बट सोचो यही चीज को मेरे को बार 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 एक चीज में करना है, तो व्हाट आई विल डू? सो फॉर दैट रीजन, function is that where I want to do something. Something mean any operation, or any operation multiple time. ओके, जैसे अगर सोचो मेरा एक कैलकुलेटर फंक्शन है, और वहां पे मेरे को आड़ का फंक्शन लिखना है, तो इसमें क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसका कीवर्ड क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, def, then here you हैव योर फंक्शन नेम,
देन ये सेमीकोलन रहेगा, उसके बाद योर स्टेटमेंट्स, and at the end whenever you want to call the function, this will be the definition of the function, and when you want to call it you will be calling it by func name, and ये जो फंक्शन नेम रहेगा इसके अंदर तुम अपना आर्ग्यूमेंट पास करोगे, ये फंक्शन नेम के बाद यहां पे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट देके यहां पे आर्ग्यूमेंट पास करते हो, इसको जब कॉल करते हो ऐसे कॉल करते हो। तो व्हाट विल हैपन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे क्या होता है इसमें लोकल ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा समझ के देखो। सोचो मैं एक इनपुट लेता हूं, पहले हम लोग कैसे लिखते थे, इंटीजर ए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। यस सर। अभी तक सब कुछ नया है ही नहीं इसमें। हाँ हाँ ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, खाली अगर कुछ लोग है ना प्रैक्टिस नहीं करे ना, मैं उनके लिए डरा हुआ हूँ एक्चुअली, वो हाउ दे आर गोइंग टू दे आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट। मैं क्या करता था पहले, सम इक्वल टू ए प्लस बी करता था, और उसके बाद प्रिंट सम करता था, राइट? यस ऐसे ही सर। करते थे। यस इसका सर। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यूबल लिखेंगे, सोचो ऐड, ओके, और लेट्स से सम, व्हाट विल डू द व्हाट विल बी द इनपुट फॉर दिस, हम लोग जो चीज इसमें काम करना चाहते हैं, सोचो इसके अंदर मैं सम का फंक्शन लिखूंगा, मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, ये दोनों चाहिए होगा, ए एंड बी वेरिएबल, तो मैं वो दो चीज को ही एज एन इनपुट लूंगा यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट, ओके। और इसके बाद मैं इसमें क्या लिखूंगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी, लेट्स से, or maybe I can return it as add, and here I can do see sum equal to a plus b, or let's say addition answer equal to a plus b, then I have to return the value, okay, addition answer. Why I am returning, anyone? तो आउटपुट कैसे दिखाई देगा? Because अभी मैं जो तुमको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट सोच रहा था, बता रहा था ना, यहां पे अगर देखोगे दिस इज ए लोकल वेरिएबल एडिशनल आंसर फॉर दिस फंक्शन, इसका स्कोप यहां पे स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हो गया। जैसे व्हाइल लूप में मैंने बताया था, अगर देखोगे यहां पे अगर डिजिट का यहां पे आधा स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हो गया ना, जब व्हाइल लूप खत्म हो गया पूरा का पूरा, इसमें एंड हो गया, बट यहां पे तुम डिजिट यस प्रिंट सर। करेगा तो भी प्रिंट करेगा, बिकॉज इसका स्कोप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहां को मैंने इसके अंदर असाइन किया है। बट जब फंक्शन की बात आती है यहां पे क्या होगा, ये एक सेपरेट एंटिटी है, इसको इसको इसका जो इनसाइड जो है ये मेरे को जनरली पता नहीं होता। अगर सोचो कैलकुलेटर में इनसाइड में कौन से फंक्शन लिखा हुआ है, ये तुमको पता होता है क्या? नहीं, राइट? नो सर। तुम खाली ऐड करके कॉल करते हो ए और बी, बट ये प्लस ऑपरेटर के हिसाब से ये सारा चीज इंटरनल हैंडल होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कैसे होता है, ये ए को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करता है, बी को एक ए को एक बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बी को एक बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन बाइनरी को ऐड करता है, एंड देन इसको कन्वर्ट करके दे जाए। अगर सोचो जनरली काम कैसे करता है, अगर तुमको बता नहीं जाऊं, 3 अगर देते हो, सोचो 1 1 है, राइट, एंड लेट्स से 5 देते हो, क्या होगा, 4 1 1, यहां पे क्या आएगा 2 to the 0 2 to the 2, राइट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ये चीज, बाइनरी कन्वर्जन? समझ में यस आ सर। रहा Yes, है। sir. How will happen 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1, तो वो क्या हो गया, 2 to the 0 2 to the 1 2 to the 2 2 to the 3। सर। पहला पहला क्लास में कवर किया था मैं ये, यस सर। एंड ये चीज हो गया 8, राइट? यस सर। तो 5 + 3 = 8, ऐसे होता है इंटरनली, राइट? बट तुम इसके ऊपर कभी जाते हो क्या सिमिलरली?
फंक्शन में कुछ भी होता है, इसके अंदर कुछ भी होता है, तुम इसके अंदर कभी नहीं जाओगे। हमेशा क्या होगा, ये जो चीज होता है ये चीज मेरे को बाहर चाहिए होगा, ये चीज में। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे कॉल करता हूं जनरली, अगर मैं ये फंक्शन की यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से सम इक्वल टू, आई एम राइटिंग लाइक सम फंक्शन इक्वल टू आड ऑफ a comma b. I'll write something like this, and here I can write print some function. I'm just giving you the easiest way. You can write in a multiple different way as well. Okay. तो इसको अगर रन करने जाओगे, ए इक्वल टू 3 देते हैं, बी इक्वल टू 5 4 देते हैं, देखो 7 7 हो गया। सो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ 7 7 डायरेक्टली, और ये इसको एक फंक्शन तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। वाई फंक्शन इज इंपोर्टेंट, कल को जाके अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करना होता है इन ए लार्जर फॉर्म, मॉड्यूलर एज वे, यू हैव टू यूज फंक्शन लाइक दिस। सोचो कि 5 6 जगह से मैं सेम फंक्शन को कॉल करने वाला हूं, लेट्स से दूसरे एक फाइल में है और दूसरे फाइल से इसको कॉल करने वाला, इस चीज में मैं फंक्शन जनरली यूज करता हूं। सो इसीलिए यहां पे लोकल ग्लोबल वेरिएबल कंसेप्ट कहां पे आता है, अगर मैं यहां पे इसके बाद प्रिंट करता हूं प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट एडिशनल आंसर, यहां पे एडिशनल एडिशन आंसर क्यों नहीं आ रहा है एनीवन, बट ए भी क्यों आ रहा है तो एनीवन? वो ये भी हम लोग ग्लोबली हम लोग उसको असाइन क्योंकि किए yes, थे, बट क्योंकि एडिशनल ए बी आंसर का तो स्कोप हम यहां लोग। पे है, ग्लोबल। यस, राइट आदित्य, यस ए बी सर। का स्कोप यहां पे है। इसीलिए यहां से लेके मैं जहां पे पास भी किया हूं, वहां वहां पे ए का वैल्यू पूरा फ्लो होके चला गया। सिमिलरली बी का वैल्यू भी यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर किया है, इसके अंदर नहीं है, बट यहाँ पे जब एडिशन आंसर की बात आती है, इसको मैंने इसी के अंदर ही डिक्लेयर किया, और इसका स्कोप यहीं पे खत्म हो गया। इसीलिए तुम अगर इसके ऊपर ऐसे रखोगे, क्या बोला, नहीं सर, एडिशन ये तो आंसर, लोकल है इसलिए नहीं नॉट है। डिफाइंड। एग्जैक्टली। सो दिस yes, इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। बट अगर मेरे को इसको ग्लोबल भी करना है, आई कैन डू दैट, हाउ विल आई डू, ग्लोबल, ग्लोबल जस्ट डिक्लेयर एडिंग दिस करें। जस्ट कीवर्ड, एडिंग ग्लोबल। ग्लोबल, ग्लोबल एडिशन आंसर। बट यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो एक्स एडिशन सर इक्वल टू, देखो यहां पे आ गया अभी। yes, यस सर। तो सो अगर किसी चीज को भी ग्लोबल करना है, इधर हियर करो नहीं तो इधर करो, यह डिफॉल्ट ग्लोबल होता है, राइट। yes, sir. अगर इसको मेरे को मैन्युअली ग्लोबल करना है तो मैं ऐसे करके कर सकता हूं। अगर अगर मैं इसको अभी प्रिंट करना चाहूं, ये 12 Hmm. एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस विद लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल? यस yes, सर। sir. सर एक डाउट है सर, जब हमारा बाय डिफॉल्ट हम लोग किसी भी चीज को अगर मतलब ऊपर हम लोग ग्लोबली उसको असाइन कर सकते हैं, देन व्हाई वी नीड टू डू इट इन द इनसाइड अ फंक्शन? सोचो यहां पे मेरे को, यहां पे एडिशन आंसर कुछ मैंने डिक्लेयर करना चाहता हूं, और ये चीज मेरे को और कहीं पे यूज होगा, जैसे यहां पे यूज हुआ, मैंने प्रिंट किया। अगर सोचो यहां पे मेरे को ये एडिशनल आंसर कहीं पे और किसी कंटेक्स्ट में चाहिए, सोचो और कोई फंक्शन के लिए मेरे को यूज करना है सेम चीज को, हाउ विल आई यूज इट, बिकॉज इट इज लोकल टू दिस ऐड फंक्शन, राइट। यस सर। सो हाउ विल गेट दिस इनसाइड आउटसाइड एडिशनल आंसर हियर। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल वेरिएबल यूज किया, इसीलिए मेरे को तुमको इसको समझाने के लिए। बट जनरली क्या होता है, सोचो मैं यहाँ पे एक हीप मेमोरी असाइन कर देता हूँ, लेट्स से लाइक दिस, which will be, let's say, within 12,000, okay, समथिंग लाइक दिस, ओके। अगर मेरे को यहां पे आउटसाइड में भी इसका आंसर चाहिए, हाउ विल आई डू दैट, बिकॉज मेरे को ये चीज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है कुछ भी, बट मेरे को इसको बाहर भी चाहिए, हाउ विल आई गेट दिस डेटा।
हाउ सर इट इज नो पॉसिबल? मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम इसको बाहर आगे ही कर सकते हैं हाँ तो हाँ। फिर इधर क्यों, मतलब ऐसा क्यों करना, लाइक या ग्लोबल का कंसेप्ट तभी होता है जब तुमको कोई भी चीज इनसाइड डिक्लेयर करना है या आउट, ये पूरा का पूरा स्कोप में उसको अवेलेबल करवाना है। सोचो, ये चीज मैं कहीं पे भी यूज कर सकता ना। अभी देखो, पहले एडिशन आंसर तुम बाहर एक्सेस कर सकते हैं क्या? नो सर, पहले नहीं कर सकते थे। बट फंक्शन के अंदर ये था, तो इसका यस सर। स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया था। यस तो इन सर। लार्जर कंटेक्स्ट जहां पे तुम्हारा कोई स्कोप खत्म हो जाता है, बट तुमको उसी उसी वेरिएबल का वैल्यू बाहर और किसी चीज के लिए चाहिए, कोई एक्सेसिबिलिटी के लिए चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ग्लो हीप मेमोरी हो सकता है, जैसे एक इंपोर्टेंट पैरामीटर कुछ है जिसका आउटपुट मेरे को बाहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस में मैं ग्लोबल यूज करूंगा। ओके। नहीं तो जरूरत ही नहीं ग्लोबल यूज करने की। जनरली ग्लोबल बहुत मिनिमल केसेस में यूज होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एनवायरनमेंट पाथ पता है किसी को? तुम एनवायरनमेंट पाथ सेट करते हो, प्रोग्राम का पाथ सेट करते हो, राइट? यस सर। पता है किसी को कि नहीं पता है? मेरे को नो सर, क्लियरली नो सर, नो सर। Yes, तो sir. जिन लोग को अगर पता होगा, अगर पाइथन का तुम ऐसे डायरेक्टली इनपुट कर सकते हो, नहीं तो जैसे हम लोग पाइथन लिखकर चले हैं, सॉरी, पाइथन लिख देते हैं, हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग, हाउ इट इज फाइंडिंग, वेयर द प्रोग्राम्स आर देयर। हम लोग एक पाथ करते हैं सेट, पाइथन का पाथ। जब ना मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ऐड लाइब्रेरी टू पाथ, याद है यस किसी को? सर। यस यस सर, सर। डाउनलोड Yes. तो करने के टाइम पे। हम लोग एनवायरमेंट पाथ सेट करते हैं, मैंने बोला था मैनुअली भी कैसे सेट करना है, मैंने तुम लोग को बताया था, राइट? हम्म। कैसे यस। करते थे? ऐसे ही करते थे। जब भी इंटरनल, वो चीज में भी इंटरनल हो सकता है टू द सिस्टम, बट मैंने ग्लोबल डिक्लेयर किया तो कहीं से भी वो चीज को एक्सेस किया जा सकता है। समझे सभी ये चीज? यस। अभी ये एग्जांपल से समझ लो, दैट इज ए ग्लोबल क्रीडा, ग्लोबल एनवायरमेंट वेरिएबल। यहां पे अगर मैं, आई थिंक ई एन भी टाइप, नॉट दिस वन, आई थिंक ऐसे करते हैं, ई एन बी इन्फो और समथिंग, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट कमांड, बट ये समथिंग लाइक दैट। जनरली लिनक्स में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इजीली ई एन भी यूज करके, बट डू नॉट रिमेंबर द पाइथन कमांड फॉर दिस। इफ यू वांट लेट मी गूगल इट आउट, ओके? अरे ये क्यों नहीं जा रहा है? समय ग्लू नहीं जा रहा है दूसरे स्क्रीन में, बट या समझ जाओ। ओके, मे बी एनोटेशन ऑन है केवल के, इसलिए नहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ओके? ठीक है। सो बट द थिंग इज दैट, एक वेरिएबल होता है, जब भी तुम कोई भी चीज में जाते हो, एनवायरनमेंट कमांड करके होता है। विंडोज में कैसे प्रिंट करें मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट या डेफिनेटली मेरे को याद नहीं एक्चुअली समहाउ, बट लिनक्स में तुम इजीली प्रिंट कर सकते हो, ओके, एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो वो चीज़ अगर प्रिंट करना है तो कहीं से भी चीज़ों मिल जाती है, ठीक है? कैसे वे प्रिंट करना है, अगर अगर तुमको चाहे कि एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है, डायनेमिक वैल्यू सेट करना है, तो वो चीज़ इजीली मिल सकता है, ठीक है? ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट राइट टिल नाउ? ग्लोबल, लोकल एंड फंक्शनलाइजेशन ऑफ थिंग्स एंड ऑल। नो सर। और सर, जो ये चीज पूछे ना, मतलब कोई भी जो भी पर्सन, मुझे लगता है कि मतलब मैंने मतलब माइंड में थॉट चल रहा था, मतलब शायद ये सही है कि गलत, डोंट नो। मतलब ग्लोबल चीज, वो जैसे ग्लोबल कंपनी हो गई किसी का, तो वो हर जगह से एक्सेस हो सकता है। और लोकल जो एग्री। है सिर्फ हमारे लोकल शॉप में मिलेगा, आसपास के यस यस। एरिया में मिलेगा, पूरे कंट्री में नहीं मिलेगा, या पूरा वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेगा। अगर हम लोकल को ग्लोबल बना देंगे तो हमारी रीच ज्यादा हो जाएगी। एग्री। That is a good example. Yes, we can do that. That is how you should think. सी, ग्लोबल मतलब है कि सारी जगह से तुम एक्सेस कर सकते हो। सोचो, ये चीज यहाँ पे एक्सेस नहीं था और ये चीज को मेरे को बाहर यूज करना है फॉर एनी ऑफ द थिंग्स, मेरे को यहाँ पे प्रिंट करने के यूज करा, बट मे बी इसको मैं दूसरा कोई फंक्शन का इनपुट ले लूँ। सोचो कि मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है दूसरा, जैसे चेक मेम साइज, और यहाँ पे मैं कुछ ले लूंगा इनपुट, लेट से व्हाट साइज, ओके? इफ साइज लेस देन
हीप मेमोरी, गुड से लेस देन साइज पहले। इससे क्या हो, चेक मैं बता करके रहा हूँ, मेमोरी। मैं बता रहा हूँ तुमको अभी। इक्वल टू री प्रिंट बॉर्डर लाइन एल्स प्रिंट क्रॉस कैन happen, ओके, समथिंग लाइक दिस, ओके। और मैं यहाँ पे चेक करने के चाहता हूँ, चेक मेम साइज, और यहाँ पे सोचो 13,000। सी, दिख रहा है ये चीज? यहाँ पे देखो हीप मेमोरी, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है क्या कहीं पे इसके अंदर कि इसके ऊपर कहीं पे भी? नो सर। बट यहाँ पे मैंने ग्लोबल हीप मेमोरी इसके अंदर यूज किया था। सम मे बी इट इज आउटपुट ऑफ एनी ऑफ द अदर थिंग्स, और मैंने यहाँ पे कोई भी चीज का लेके मैंने एक हार्ड कोड किया था। ये चीज को मैं इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ, राइट? बिकॉज दिस यस इज ए यस ग्लोबल सर। वेरिएबल ओनली। वहां पर तो ग्लोबल था, इसलिए यूज किया है। एग्जैक्टली, सो व्हेनेवर इट इज ग्लोबल, इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ऐसा समझो, जैसे प्रिंस ने बताया ना, अगर तुम्हारा कंपनी ग्लोबल यस सर, कंपनी है, लोकल होगा तो लिमिट रहेगा। एग्जैक्टली लोकल में लिमिटेशन है, बट ग्लोबल में कोई लिमिटेशन नहीं है। वो चीज को तुम कहीं पे यूज करके चेक कर सकते। यहाँ पे देखो मैंने कहीं भी यूज भी नहीं किया है, बट यहाँ पे मैंने जस्ट उसको उठाया और उसको यूज किया, और यहाँ पे अगर देखोगे, देखो लिटरली तो 12,000 लिखा हुआ है, दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस यस सर। सर। अगर सोचो यहाँ पे मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, 3 एग्जाम्पल लेके, और यहाँ पे सोचो 11,000 लिख दिया, यहाँ पे 12,000 लिख दिया। सो ये तीनों को देखो, नॉट लाइक दिस। चलो उसको अभी इतना ज्यादा नहीं लिखते। सी, देखा? तीनों का तीनों चेक हुआ। कैसे चेक हो रहा है ये? बिकॉज दिस इज वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ये अगर लोकल होता तो मेरे को लिए टेंशन ही नहीं था कि ये चीज कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं क्या डिक्लेयर नहीं कर सकता था। तो उस केस में लिखते हैं, आई थिंक एक, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एनवायरमेंट वेरिएबल्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, you can use OS path and all. I was just googling it on my mobile, so checking. Okay, I forgot that. That's why I just wanted to tell you again. Okay, so if you do something called as OS and OS dot environment, you can see all this global variables. Okay, environment variables. So those are global variables only. Why they are there? So let's say I will just print something like this. Okay, environment var dot py. So you have to do import OS and print OS dot and yes, this one. See, these are lot of, I have lot of things. Okay, you can see all these things. These are global variables only. Okay, a lot of things over here. I'm doing a lot of things, so everything is set. Okay, anyway, leave it, but yeah, you can try all these things. Okay, so you have to see like where I have to use global, where I have to use local, that you need to understand. So if you go for, let's say, functions, you have to understand like what is its scope, this variable scope. Sometimes it is, mostly it is local only, sometimes it will be global, sometimes like in this case how you have set it. Maybe some, it might be output of some calculation, let's say one complex calculation which will be giving you this heap memory, and you just wanted key, you do not want to lose it, you want to use it in somewhere else. So in this case you can use global. Okay, any doubt on this? नो सर। आदित्य, यस सर। सब समझ में आया? कुछ यस। डाउट है तो पूछो यार, किसी को कोई डाउट है इसमें? और No, किसी को? sir.
ओके, चलो। आज का सेशन का नाम ऐसे लिख देना आदित्य, सर बोलिए। लूप फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, लूप समथिंग लाइक फंक्शंस। loops functions and global variables, ओके hyphen सर। hyphen hyphen, श्योर सर। okay, something like that, loop or loops comma functions comma global यस variables। सर। ठीक है सर। ओके, बट ठीक है सर। फंक्शन में मैंने कुछ कवर नहीं किया अभी तक, ज्यादातर हम लोग इसके ऊपर करेंगे। और यहाँ पे आता है तुम लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट, जैसे मैं हमेशा देता हूँ, कैलकुलेटर असाइनमेंट। और एक चीज और डाल देना, नहीं तो एक काम करना, ठीक है, डाल दो डाल दो, एनीवे वो चीज डाल दो, हम लोग आगे जाएंगे एनीवे। कैलकुलेटर असाइनमेंट में क्या चाहिए मेरे को? नेवर एंडिंग कैलकुलेटर। नेवर एंडिंग कैलकुलेटर मतलब क्या, बताओ? जो हमेशा एक्टिव रहे, मतलब आउटपुट देने के बाद फिर इनपुट मांगने लगे शायद। एग्जैक्टली, आउटपुट एंड देन इनपुट अगेन। It should have what columns, I will tell. Add, subtract, 3. Multiplication. Understand MULT I am just writing. Huh? हम्म। Division, mod, then I'll give floor division, 7. What is that? Exponent, right? एक्सपोनेंट। Factorial, sum of, let's say, let's not give some n natural numbers. Okay, and then 10 is exit. So these you have to implement. सर वो नेवर एंडिंग कैलकुलेटर वो थोड़ा समझ में नहीं आया, वो क्या है, एक बार फिर से समझा सर। ये जब तक मैं 10, ओके, काम करता हूं, 9 कर देता है, 0 इज एग्जिट। ओके, सोचो जब तक मेरा, मैं जब भी मेरे को ये हमेशा दिखता रहेगा 1 2, ये चूज एनी वन among them, whenever I'll be just pushing 0 only, then it will be only exiting. Other cases after, let's say add, it will ask for enter a number a, enter b. So you have to enter your numbers, and then it will give you the input, sorry, output, and then it will again go for asking this. Okay, and till the time you are not pressing 0, it will not exit. Got it? यस सर। Aditya, doubt? सर समझ में नहीं आया फिर से। Okay, I'll explain one second. So let's say, whenever I'm just running this program, let's say calc.py. Okay, what will happen? It will show you this menu with यस सर। choices. यस सर। So सर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग जब तक मतलब वन अगर प्रेस करेंगे तो ऐड होगा, फिर से इनपुट दिखाएगा, अगर हम लोग 6 पुट करेंगे exactly, तो डिवीजन होगा, अगर हम 7 पुट करेंगे उसके बाद तो एक्सपोनेंट होगा। लाइक यस। दैट। एंड ईच केसेस में अगर देखोगे तो तुम्हारा आउटपुट जो है वो अलग अलग है, मतलब जैसा यहाँ पे मैंने एक यस चीज सर। जानबूझ के डाला है, ये दोनों में, फैक्ट और सम में, यू हैव टू टेक वन इनपुट, राइट? यस सर। अदर केसेस में, हम्म। जस्ट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग व्हाई दिस विल हेल्प यू डिजाइन द सिस्टम, and here हम्म। you will have something called as two elements. Okay, यस। understand like this, or else यस। if you want take multiple, you can take multiple as well, that is up to यस। you. Okay, menu choice, and once you are putting 0, this इट menu विल will not be देन sorry, इट it विल will be एग्जिट। just exit, just exit. Okay, ओके। ओके सर। understood everybody? यस सर, यस अभी सर। समझ में आया। And try to do it via simple things, but once we that's a function thing, related things we covered today, this thing I'll show you by a function tomorrow, how you have to do. If you want to do via function, that is also welcome for you. Okay, ओके यस सर। सर। another layer on top of this I'll show you, so that you will people will understand, this is also one kind of, you understand, one kind of program which is asked in many of the questions for very initial level programmers. Okay,
दिस इज एफ एल ऑल्सो है सर इसमें तो। सॉरी, सर इसमें तो पूरा एफ एल से पूरा कंडीशनल। इतना इजी भी नहीं है। इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। यू हैव नॉट हाँ थॉट सर। ऑफ दिस, ओके। हाउ टू हैंडल दिस इन ए वेरी मिनिमल मैनर, दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। हाँ, ओके, लर्निंग वाला तो समझ में आ गया मेथड क्या है, मतलब जो कॉमन मेथड है, बट शॉर्ट हाँ में। ठीक है, करो करो, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को इसी पे तो समझ में आएगा कि कैसे होता है चीजें। ओके, यस सर। अभी तक ओके, मैं नहीं बोलूंगा अभी कुछ, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर कल। सर कैन यू टेल वंस अगेन, मतलब आज का टॉपिक है लूप्स, फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट? हाँ, इतना डाल दो बस। ओके सर। Loop functional global variables or global slash local variables. That is also fine. I have covered arithmetic operator, but I do not want to highlight because tomorrow's class I am planning to take operator only. So we'll see. Function and operator tomorrow will take more. Okay, on this. See, I do not, like जहां पे जा रहा है उसके हिसाब से मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। ऐसा कुछ प्लान करके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आज तक। ठीक है, तो यस सर। चलो, और कोई चीज डाउट है किसी चीज को इसके ऊपर लेके? नहीं है, राइट? यस सर। कुछ है तो बताओ। सर I'm just stopping the recording. I'll be there for another 5 minutes. If you have any questions, I can cover it. बस सर, सर जो भी डाउट होगा आज प्रैक्टिस करेंगे, उस हिसाब से आपको नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। ओके, बट प्रैक्टिस करो। जो भी मैंने कल का टास्क दिया था उसको मैं यस शेयर भी सर। कर दूंगा तुम लोगों के साथ। आई थिंक बंदे एक्चुअली, ये लोग ना क्या सब लोग समझ रहे हैं कि सर शेयर कर दे रहे प्रोग्राम तो हम लोग को मिल जाएगा प्रोग्राम। अभी से मैं क्या करूंगा अगले बार से, आई एम थिंकिंग आई विल नॉट शेयर यू द प्रोग्राम्स एनी मोर। देन यू पीपल हैव टू हैंडल इट ए वेरी वे डिफिकल्ट वे। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ही करूंगा, और ये प्रोग्राम मैं तभी शेयर करूंगा जब तुम लोग एक बंदा एटलीस्ट आंसर करेगा, उसके बाद आई एम पर्सनली गोइंग टू सेंड इट टू देम। आई विल नॉट सेंड इट इन द ग्रुप। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। पीपल आर प्रैक्टिसिंग ना, क्या बोलते हो? यस सर। यस। यस सर, इट्स गुड। यही करेंगे क्या अगली बार से? अगर तुम ग्रुप में भेजो आंसर या पर्सनल भेजो आंसर, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं मेरे को अगर आंसर मिलेगा देन मैं उनको आंसर भेजूंगा, आगे का आंसर यस और सर। आगे का प्रोग्राम्स। और एल्स आई एम नॉट गोइंग टू सेंड देम। यही ओके। करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ। जो अपने ये सर है, शंकर सर। शंकर ये सर। ये शंकर सर, एंड देन आई विल डिसाइड। बिकॉज उसके बाद ही तुम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। कोई नहीं कर रहा है ना प्रैक्टिस। सर तो भेज रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम देख लेंगे, यही चल रहा है। मैं देख रहा हूँ। अभी तुम लोग से थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नहीं तो अगले क्लास में मैं ये क्या करूंगा कि तुम लोग अपना प्रेजेंट करके कोडिंग करोगे सामने से। और एल्स असाइनमेंट के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा वीकेंड में, कभी होगा होता है तो। यू हैव टू प्रेजेंट योर केसेस, आई प्रोग्राम गिव यू प्रोग्राम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन मी। ये करते हैं नहीं तो। ये दो तरीका देखेंगे कौन सा वाला सही रहता है। ओके, उसके हिसाब से करेंगे। तुम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं करते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा ना। मैं मजाक कर रहा हूँ एनीवे। नहीं तो सर से बोलूंगा कि अभी नहीं शेयर करेंगे चीजें इन लोगों से जब तक इन लोग प्रोग्राम नहीं करते। क्या बोलते हो सब लोग? सही है सर। मैं चलो, तो सब देखता, मैंने तो देखा भी नहीं, पहली ओपन नहीं करके देखा है। नहीं वो बाद में देखो ना। देखो, तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं सारी चीज भेज देता हूँ, जो भी हम लोग क्लासेस में डिस्कशन करते हैं सब कुछ। बट तुम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुम लोग देखो, पाइथन इज कोडिंग इज नॉट समथिंग व्हिच यू कैन गेट बाय जीन्स डायरेक्टली, राइट? हम्म। You have to go through it, then you will have understanding any code. It might be C++, यस। it might be Python, ये जावास्क्रिप्ट ले लो, कोई भी ले लो, इवन एसएपी हो, इवन डेटा एनालिसिस का तुम्हारा कोई भी चीज हो जाओ, पावर भी हो गया सर, वही पावर भी हो वही गया। भी। प्रैक्टिस नहीं करो तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करोगे तो तुमको समझ में आएगा। मैं तो डाउट क्लियर करने रेडी हूं ना। मैं बता रहा हूं क्या कि डाउट क्लियरिंग नहीं करना है बोल के। मैं तो बोल रहा हूं कि तुम आओ मेरे को डाउट पूछो, मैं करूंगा। मैं तो चार चीज बताने के लिए रेडी हूं। मैं क्यों टास्क दे रहा हूं तुम लोग, अगर इसमें से अभी हो जाओगे, अभी कल को जाके मैं डेटा साइंस का जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना, डॉट डेटा साइंस में भी पांडास डेटा साइंस, यू कैन टेल लाइक पांडास का प्रोसेसिंग। तुमको ये चीज क्लियर नहीं होगा तो वहां पे क्या जाओगे, क्या पूछोगे, क्या समझोगे? मैं इसीलिए तुम लोगों को टास्क दे रहा हूँ सो दैट देखो, तुम लोग के इस टास्क के बहाने ये जो हम लोग लूप 6 आंसर कर रहे थे, इसमें कितने चीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर ये सब कवर कर चुके हैं, राइट? Although I am taking explicit classes for that, but you know ahead of that right now because you are practicing, you are doing some googling. Then I am covering in the class.
यू विल बी एबल टू नो, यू विल बी रिमेंबरिंग ओके मैंने यहाँ पे ये चीज किया था और ये चीज यहाँ पे यूज होगा. इफ यू डू नॉट डू इट देन इट इज योर लॉस. आई कैनॉट डू एनीथिंग ऑन दिस. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. बट तुमको मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो. नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आंसर शेयर नहीं करोगे मैं बंद कर दूंगा ये सब शेयर करना पर्सनली. सॉरी ग्रुप में पर्सनली ओनली आई सेंड. व्हाट एल्स आई कैन डू? और एल्स तुम लोग प्रेजेंट करोगे, मैं बैठ के सुनूंगा एक ही सब टॉपिक प्रोग्राम. यही करेंगे अगली बार से. क्या बोलते हो? सही है सर. चलो, थैंक यू. सी यू टुमारो. ओके, टुमारो का क्लास सेम टाइम 8:30. ओके. ओके सर. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू. चलो थैंक बाय यू बाय. सर. बाय सर.